Welcome, Sudhakar, for accepting my proposal to share with us your views as well as your experience regarding online as well as offline interviews and preparation. But for my viewers, I will like to introduce Mr. Sudhakar Kumar. Mr. Sudhakar Kumar has completed his BTech in Electronics and Communication Engineering from Sri Mata Vaishno Devi University. During his BTech, he was awarded the University Silver Medal for securing the first position in his batch. After this, he interned at Academia Sinica Taiwan in 2016, where he was one of the 60 students selected across the world. During this internship, he got a scholarship to pursue MS at National Tsinghua University, that is NTHU. Subsequently, he joined NTHU to start his MS. However, he had to leave this course in between due to some unavoidable circumstances, and he returned to India after staying in Taiwan for 5 or 6 months. Next, he joined IIT Mandi to work on a state government sponsored project to develop an early warning system for landslides. While working on this project, he co authored a book chapter that was published by Willy IEEE Press. While working at IIT Mandi, he was offered to work on the FOSSEE project at IIT Bombay. Accordingly, he joined the FOSSEE project. The full form of FOSSEE, as been told to me, is Free Libra and open source software for education. So he joined FOSSEE project at IIT Bombay in May 2017 to work on the assimilation of open source software in science and engineering. In 2018, he got admitted to pursue 3 years MTech, that is MTech research, under the project staff category in the Department of Systems and Control Engineering at IIT Bombay. In the recent placement season, that is of 2020 at IIT Bombay, he has been selected by General Electric, more popularly known as GE, at Bengaluru to work as an Edison engineer for the renewable energy business of General Electric. He will graduate in May 2000 or June 2021 and probably will be joining GE in July 2021. So Sudhakar, on a very formal as well as informal note, I will like to request that we can keep this interview both in Hindi as well as in English, because बहुत सारे लोग हैं जो English नहीं समझते हैं और ऐसे भी बहुत सारे students हैं जो कि हिंदी नहीं समझते because they are from South India or from some places where they do not have access to Hindi. Yes. तो हम हिंदी और इंग्लिश में ही जो है इस इंटरव्यू को रखेंगे और काफी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में चलेंगे. So let us start the interview and let us start with this question, very important one, that what is basically the difference when you prepare for an online examination and when you prepare for an offline examination? And please answer me with respect to both from the preparation as well as to taking the interview. दोनों ही चीजें थोड़ा सा बताना. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Firstly, thank you for introducing me. Now coming back to the language, like we can continue in Hindi and English both. तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है because sometimes I also feel stuck कि मैं कुछ चीज़ इंग्लिश में ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता. तो ये मेरे लिए लिबर्टी है कि मैं दोनों यूज कर सकता हूँ depending on how I can express myself in which language. तो ये मेरे लिए लिबर्टी की बात है. और Yeah, coming back to the original question कि हमें ऑफलाइन ऑनलाइन में मतलब प्रिपरेशंस के में डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में. तो ऑफलाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि एटमॉस्फेयर कैसे वर्क करता है. तो ऑफलाइन में लास्ट टाइम मैं प्लेसमेंट सेल में था तो वी वर कंडक्टिंग और वी वर ऑर्गेनाइजिंग द प्लेसमेंट सेल एक्टिविटीज, बी इट एनीथिंग, इंटरव्यूज, एनीथिंग. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ट हम करवाते थे. तो प्रॉब्लम ये थी कि या इनफैक्ट हमारी वो सिचुएशनल ऐसी थी कि हमें टेस्ट वेन्यूज पे होते थे. लेक्चर हॉल में कभी किस लेक्चर हॉल में इसका होगा, दूसरे में उस कंपनी का टेस्ट चल रहा होगा. तो स्टूडेंट्स हैड टू रश बिटवीन वन लेक्चर हॉल टू अनदर लेक्चर हॉल. तो वो एक भाग दौड़ की स्थिति होती थी. एंड समटाइम्स इट वाज सो पैक्ड कि 9:30 पे एक खत्म हुआ, 9:40 से एक और शुरू हो रहा है. चांसेस हैं कि 9:30 पे एक और शुरू हो रहा होगा. And on weekends it was more severe or I think rigorous कि you have to be really on toe कि आज 10-12 टेस्ट भी हो सकते हैं और आपको भागना भी है, हॉस्टल से लंच करके फिर वापस आना है. तो ये इतना प्रेशराइज होता था. बट एट द सेम टाइम फायदा क्या था कि you were having your friends with you.
जिनके साथ आप चीजें शेयर कर सकते थे कि हाँ यहाँ मेरा गलत हुआ, यहाँ मेरा सही हुआ। तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स इन द कमिंग टेस्ट। और हम लोग ऐसा बोलते भी थे और हमारे सीनियर्स बोलते भी थे कि टेस्ट में इफ द टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, मान लिया कंपनी ए का टेस्ट हुआ हैकर रैंक पे, कंपनी बी का भी टेस्ट सेम सिमिलर प्रोफाइल के लिए था और हैकर रैंक पे ही हुआ, तो इन दैट केस चांसेस बनते हैं कि सम क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड। इनफैक्ट चांसेस बनते हैं because hacker rank, they are platforms which prepare questions for the company, or at least they conduct the recruitment test for the companies. वो करते हैं। तो we believe somehow कि there is a fixed repository जहाँ से questions उठ के आते होंगे। तो जो questions you could not solve during that test, you should write it down on the rough sheet और उसको लिख के लेके अगर रूम पे सॉल्व करवाओ, ताकि अगले टेस्ट में अगर वो वापस आता है तो आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये ऐसे मतलब मैं जस्ट इंक्विजिटिव, देयरफॉर आई एम आस्किंग कि ऐसा भी होता है कि दे आस्क टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू एज वेल। इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्टली नहीं हो सकता, बट इट कैन बी डेरिवेशन ऑफ सम फॉर्मूला और सम मॉडलिंग। कोई सर्किट आपको दिया गया, इलेक्ट्रिकल के पीपल बेटर समझ सकते हैं इस चीज को, कि कोई अगर आपको सर्किट डायग्राम दे दिया गया एंड यू माइट बी आस्क्ड टू फॉर्म द इक्वेशंस, जैसे आपने देखा हो किरचॉफ्स करंट लॉ, वो फॉर्म करके दिखाओ मुझे, चाहे हमारे कंट्रोल में होता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के बताओ, बट ये ऑफलाइन में बहुत आसानी से वो कर पाते थे। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में थोड़ा इस बहाने बच्चों की बची, मींस एटलीस्ट उनसे इतना रिगरसली नहीं पूछ सकते, बिकॉज दे नो कि हम इन्हें क्वेश्चन देंगे, देन दे विल राइट इट ऑन पेपर, फिर ये हमारे वेबकैम के सामने करेंगे, तो दैट इज अ टीडियस जॉब। तो इसी बहाने हमारी थोड़ी बच गई इस बार, वी वर सेव्ड फ्रॉम दिस रैथ एटलीस्ट, ये थोड़ा सा बचा। बट कोडिंग के केस में इट बिकम्स वर्स। कोडिंग के केस में है कि वहां पे यू विल बी एट मोस्ट क्या होगा, इसका सूडो कोड लिख के दिखाओ, एट मोस्ट यही हो सकता है कि इसका मुझे एल्गो बताओ, और कोडिंग की भाषा में एक और शब्द कहते हैं ड्राई रन करके बताओ। मींस तुम लॉजिक लिखो पहले कि सूडो लिखो, फिर रन करके बताओ। मतलब ड्राई रन मतलब कि आप बताओ कि हाँ मैंने वेरिएबल लिया तो ये यहाँ गया, फिर इसकी वैल्यू यहाँ, ऐसे करके। इट्स लाइक एन एल्गो। यस सर, तो ड्राई रन कर। लेकिन अभी क्या है ऑनलाइन के केस में, इट बिकम्स वर्स कि अब भैया तुम्हारे पास कंप्यूटर तो है ना, तो तुम एक काम करो, तुम स्क्रीन शेयर करो, तुम कोड लिख के रन करके दिखाओ, रन करो। अब अगर रन नहीं किया, इवन इफ योर एल्गो वाज क्वाइट करेक्ट, सिंटैक्स एरर अब नहीं चलेगा। अब आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। बट आई थिंक टेक्सास का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो देयर दे डिड नॉट गो अप टू दैट लेवल। उन्होंने सिंपली बोला कि मैं तुम्हें एक डॉक शेयर करता हूँ, उस डॉक पे वो कोड का स्निपेट लिख रहा था एक्चुअली, और तुम बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। I did not face that situation, but I have heard from people across IIT Bangalore, IIT Hyderabad. There it was asked to do स्क्रीन शेयर करो, एक क्वेश्चन दिया, मतलब इट वाज मोर और लेस अ टेस्ट। वो बस एक टेस्ट ही था, इंटरव्यू में भी वो टेस्ट ही आपसे ले रहे थे। तो दैट्स व्हाई इस बार ये चीज एक नई ऐड हो गई थी और पीपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि मेनली इंटरव्यू में बात ही होती है सूडो कोड लिखो, ये सब बताओ, बट कोड लिखना आ जाएगा, ये एक नया था लोगों के लिए इंटरव्यू। तो यही सारी चीजें थी ऑफलाइन ऑनलाइन में। ऑनलाइन में टेस्ट में एक फायदा था कि बस आप रूम पे बैठे रहो, लाइक द वे वी आर सिटिंग राइट नाउ। तो अभी मेरे पास बैक टू बैक टेस्ट होंगे, तब भी मैं खाने पीने का सामान लेके बैठ सकता हूँ एंड आई कैन कीप अटेम्प्टिंग द टेस्ट। क्लोथ्स के वगैरह में थोड़ा सा बताओ, क्लोथ्स पहनने क्या, मतलब किस तरीके से ड्रेसअप करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए? हाँ, मतलब कि एज पर द प्रोटोकॉल से इश्यूड बाय योर इंस्टीट्यूट, कि ऐसा कुछ है कि फॉर्मल्स पहनना है, टाई पहननी है, या कुछ क्या रहता है? फॉर्मल्स तो डेफिनेटली है, और क्योंकि इस बार एडवांटेज वही था कि ऑनलाइन था, तो ऊपर आपको पहनने फॉर्मल्स, नीचे का आप देख लो कि आपके पास बचता है। सही बात है, हाँ। तो नीचे कुछ भी पहन के आ जाओ। मैं भी ऑनलाइन लेक्चर्स में यही काम करता हूँ कि ऊपर कुछ भी पहन लूं, नीचे कुछ भी चलता है। दिखना चाहिए। तो हाँ, जैसे मैंने शर्ट पहना, टाई पहना, आई कुड नॉट टॉलरेट और आई कुड नॉट वियर द सूट फॉर द एंटायर सेशन, वो मुझे निकालना पड़ा बाद में। लेकिन हाँ, नीचे वो नहीं चलता। बट ऑफलाइन में सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ऑफलाइन में हर मैटर, क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा है कि प्लेसमेंट सेल के लोग भी वहाँ पे खड़े होंगे, तो वहीं आपको रोक सकते हैं कि तो आप फॉर्मली ड्रेस्ड ही नहीं हो। अच्छा, you need to share your screen as well as you need to put more cameras, या क्या रहता है आजकल? इंटरव्यू के लिए जितना मैंने जो एक्सट्रीम देखा है उसमें ये था कि आप बस वेलकम तो ऑन करो ही करो, और आप उसके बाद वो आपसे आईडी कार्ड शो करने को बोलते थे कि आईडी कार्ड दिखाओ, जस्ट पुट इट हियर, ताकि वो मैच कर पाएंगे। आईडी कार्ड और की शक्ल और आपकी शक्ल दोनों मैच करती नहीं है, कहीं आधार कार्ड वाला हाल तो नहीं है ना कि मैच नहीं कर रहा।
तो दिखाओ तो वो तो ठीक है, दैट्स फाइन, वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन इसमें एक बार ये एक नया एंगल हम लोगों को सुनने में मिला, हमने भले ही फेस नहीं किया हो, बट फ्रॉम सम ऑफ माय बीटेक फ्रेंड्स आई गॉट टू नो कि ऐसा भी हुआ कि जैसे मेरे केस में हुआ कि कंपनी पीपल दे आल्सो स्विच्ड ऑन देयर कैमरा, मैंने भी अपना कैमरा स्विच ऑन किया, आई हैड टू, मुझे ऑन करना ही करना पड़ेगा। एंड सिंस आई कुड सी लाइक द वे वी आर टॉकिंग राइट नाउ, मुझे दिख रहा है कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं या मैं आपकी तरफ देख रहा होऊंगा शायद, तो ऐसे करके चीजें लगता है कि ठीक है इंटरव्यूअर को मेरी बात कुछ तो पल्ले पड़ रही होगी। लेकिन वर्स्ट पार्ट और आई थिंक द अनदर एस्पेक्ट इज कि समटाइम्स द इंटरव्यूअर प्ले अ ट्रिक। वो क्या करते हैं, वो अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं। अब जब वो आपको देख नहीं पा रहे, तो सपोज कि अभी आंसर करने के टाइम पे मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, अच्छा इसका आंसर ऐसे होगा, मैं कर सकता हूँ, दैट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव पॉइंट। तो मेरी सलाह ये है, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या देखेंगे, उनके लिए सलाह ये है कि भले ही आपके इंटरव्यूअर ने कैमरा ऑफ किया है, that does not give you the liberty कि आप दाएं बाएं कर सके। Okay. You have to be attentive, you have to show your attention, you have to look into the camera, no matter whether he or she is online or is doing the web or not. वो वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। You have to be very formal, right? You have to be very formal, you have to show that you are focused. ये भी ट्रिक लोगों ने इस बार प्ले किया है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं।